Okay, this is George Simon Ohm. Okay, he is a German physicist. George Simon Ohm established a law for measuring the resistance of a conductor. In his honor, the unit of resistance is called ohm. देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है. रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू इन डिटेल फर्दर. Resistance means what? It is a obstacle basically. Word resistance comes from resist. Okay, resist का मतलब क्या होता है कि obstacle. It produce the obstacles in the flow of current. Every wire has a resistance. हर एक वायर में resistance होता है, ठीक है. तो ये रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. फिलहाल अभी आप खाली याद रखिए कि रेजिस्टेंस एक टर्म है, ओके, विच इज़ यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट. डिटेल में आपको बताता हूँ बाद में. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द ओम्स लॉ. ओके, नाउ दिस वाज टोल्ड बाय दिस जॉर्ज साइमन ओम. जो लॉ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, द रूल विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ओम्स लॉ, राइट. सो विल टेक वन वायर व्हेन विच इज कनेक्टेड विद द सेल, राइट. यू नो दिस इज अ symbol of cell. One big line is positive terminal and small line is negative terminal. And cell क्या create करता है? Potential difference, right? So we'll consider V be the potential difference. We know the symbol of potential difference V, and the current flow always from positive terminal to negative terminal. Let I be the current, electric current. It's a symbol of electric current. देखिए सेल या तो एक से ज़्यादा अगर सेल है तो उसे बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है. अगर एक है, अगर सिर्फ यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ इस तरह से सिंबल ड्रॉ की है तो ये सेल है. लेकिन अगर एक से ज़्यादा है देन इट इज़ बैटरी. ओके, वी कैन कॉल इट एज अ बैटरी. सो एज अ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, देखिए पहले एक सेल था तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. अगर मैं सेल की कैपेसिटी बढ़ाता हूँ, इफ़ आई इंक्रीज मोर सेल, more than one cell, two cell, three cell, is the current is going to increase? Yes, the current is also going to increase. Okay, as the potential difference increase even more, electric current even increases more, right. So Ohm's law give a relation. तो Ohm's law क्या बता रहा है? Basically it shows us that it gives a relationship between electric current and potential difference. Okay, so what is the basic law of Ohm? He said that whenever there is increase in electric current, there is increase in a potential difference. He showed the relationship between electric current and potential. That is only called as the Ohm's law. Let us understand. The electric current flowing in a metallic conductor, any metallic conductor, whenever the electric current is flowing, is directly proportional to the potential difference across its terminal. What is directly proportional? Means when one physical quantity increases, the other also increases. I mean to say, if I increase the battery, electric current is also going to increase. Okay, if I decrease the battery, electric current is going to decrease. ये तो इतना तो हमें भी पता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, राइट. तो ये जो रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन द potential difference and the electric current, as the potential difference increases, electric current also increases. This was told by Ohm, George Simon Ohm, and this become a law, that is Ohm's law. यही आपका Ohm's law है. So what is Ohm's law? We'll read it. The electric current flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its terminal provided physical condition of the conductor such as. देखिए ये बराबर है कि जितना बैटरी बढ़ाओगे उतना करंट भी बढ़ने वाला है, ठीक है. लेकिन कुछ कंडीशन है, ये फॉलो होनी चाहिए. व्हाट आर द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ? फर्स्ट, लेंथ ऑफ द वायर शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज. जितना भी आपने लेंथ लिया है वायर का, सपोज 5 मीटर वायर है या 10 मीटर वायर है या 50 मीटर वायर है, ठीक है, वो आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. एक बार आपने 50 मीटर वायर लिया तो उतना ही रखना है, या अगर 10 मीटर वायर लिया तो उतना ही रखना है. आप इंक्रीज और डिक्रीज उसको नहीं कर सकते. फर्स्ट कंडीशन लेंथ. सेकेंड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? उसका थिकनेस, मोटा कितना है वायर, वायर मोटा है, वायर पतला है,
ठीक है, मोटे वायर भी आते हैं, आपने देखा होगा जो केबल लाइंस होते हैं, अंडरग्राउंड केबल लाइंस डाले जाते हैं, ओके, यू हैव सीन, ओके, दे आर कॉल्ड एज केबल वायर्स, ओके, उसका थिकनेस बहुत मोटा होता है. सो द थिकनेस और द डायमीटर ऑफ वायर शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन करंट पासेस. Temperature of wire should not change. You should not change the wire temperature again and again. It should remain same. And the last is material remain constant. Material of the wire should not change. If you have taken copper wire, then use a copper wire only. If you have taken aluminum wire, then use aluminum wire only. Okay, don't change the material of the wire again and again. So these are the conditions that you have to be followed. Then only whenever you increase the potential difference, the electric current is going to increase. So this is a simple and basic law that is called as the Ohm's law. Okay, we'll read it once again. The electric current flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its terminal. What is the meaning of this? As you increase the potential difference, the current is also going to increase. As you decrease the potential difference, the current is also going to decrease, provided the physical condition of the conductor such as the length, area of the cross section, temperature and material should always remain constant. So this he have derived in the form of mathematically also, that is I is directly proportional to V. Now you can see this is the alpha sign. आपने ऐसा साइन देखा होगा, ये अल्फा का साइन है, बट यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, इसको हम लोग ये सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. That means if V increase, then I also increase. If V decrease, then I also decreases. Correct? So further it has been solved, or I can write as V is directly proportional to I. One of the same thing. या तो I directly proportional to V, या तो V directly proportional to I. Where V is equal to constant into I. ठीक है, जब भी आपको पता ही है कि whenever you remove this alpha sign, देखिए जब भी आप ये alpha sign निकालेंगे तो वहां पे इक्वल टू साइन आ जाएगा. यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन आ गया, और इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट टर्म आने वाला है. ओके, उसके बाद इनटू आई, तो कांस्टेंट इनटू आई, एंड v अपॉन आई, आई में नीचे लेके आ जाऊंगा डिनोमिनेटर में, सो इट बिकम्स v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट हियर? हियर कांस्टेंट इज नथिंग बट r. दिस कांस्टेंट टर्म इज कंसिडर्ड टू बी द r. ओम ने कांस्टेंट टर्म क्या लिया है, r. मैथमेटिकली टर्म में अगर आप देखेंगे, वी जनरली टेक द कांस्टेंट टर्म एज अ k, राइट, बट हियर ओम हैव टेकन एन r. ओके, नाउ व्हाट इज r and why r you have taken? R is nothing but a resistance, okay, that you are going to study detail in the next slide. So this becomes a formula, that is v is equal to IR, where r is nothing but a resistance. So is it clear with this Ohm's law? Okay, so what does the Ohm's law say? Whenever the potential difference increase, electric current also increase. Okay, and whenever the potential difference decrease, the electric current also decreases. Okay, and the mathematical term में भी उसने derive कर दिया, that is I is directly proportional to V, और V is directly proportional to I. Correct? So V is equal to constant into I, so V upon I is equal to constant, where constant is nothing but R. So final formula you got V is equal to IR. Correct? Where R is nothing but a resistance. So I hope it is clear with the Ohm's law. Correct? So I'll show you in the textbook also, it is given to you. Now see here, this is the given Ohm's law. Okay, you can write this definition also, it is one of the same. This law also you can write, or you can write the law which I had given you in the slide. It is one of the same thing. The relation between the current flowing through a wire and the potential difference across the its end can be obtained from the law that is given by George Simon Ohm. Okay, तो उसका law क्या है, यहाँ से शुरू होता है आंसर. If the physical state of a conductor remain constant, the current flowing through the it is directly proportional to the potential difference between two its end. Okay, आप ये भी लॉ लिख सकते हैं, या तो जो मैंने आपको दिया है अभी स्लाइड में वो भी आप लिख सकते हैं. देखिए बाद में मैथमेटिकल टर्म से उसको डिराइव किया है. ओके, एंड दिस इज नोन एज द ओम्स लॉ. ये पूरा ओम्स लॉ है, राइट. ओके, एसआई यूनिट ऑफ आपको याद रखना है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ओम. ओके, और 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. देखिए V इज इक्वल टू IR था, राइट. यही ओम्स लॉ था. ओम्स लॉ भी आपको याद रखना, ये इक्वेशन, दिस विल बी हेल्पिंग यू, दिस फॉर्मूला इज हेल्पिंग यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, मैं फिर से बता दूं,
V is nothing but potential difference, I is nothing but electric current and R is nothing but resistance. अब यहाँ से मुझे R का फॉर्मूला बनाना है तो I can make R is equal to V upon I. Clear? R means what? Resistance. और resistance का यूनिट क्या है? ओम. OHM. V is what? Potential difference. Potential difference का यूनिट क्या है? वोल्ट. ये हमने देखा था. और I means what? Electric current. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. राइट? अब सब जगह अगर आप 1 लगा देंगे तो आप देखो ये वाला डेफिनेशन बन जाता है आपका 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. करेक्ट? और 1 ओम का डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया है. If 1 ampere current flow through a conductor when 1 volt of potential difference is applied between its end, then the resistance of the conductor is 1 ohm. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको 1 ओम का दिया. जिस तरह से 1 एम्पियर का डेफिनेशन था, 1 वोल्ट का डेफिनेशन था, वैसे 1 ओम का भी डेफिनेशन है. राइट? ओम का सिंबल है इस तरह से, ग्रीक लेटर है. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं OH, या तो आप ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं ओम. ठीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज रेजिस्टेंस, सॉरी व्हाट इज ओम्स लॉ. करेक्ट? अब रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड नाउ. चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस. ओके, to understand a resistance, I'll take a wire. Okay, you know this is a wire. In this there are the two things are there. First of all, one is an atom. Blue color dot you can see is an atom and black color is nothing but an electrons. Atom is always in a state of vibration and electrons are always in a random motion. Now if I connect this wire with a cell, now what happened? You know what happened. Electron will flow from negative terminal to positive terminal. देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो हो रहे हैं. When cell is connected, it creates a potential difference. PD means what? Potential difference. Electron flow from negative terminal to positive terminal. This moving electron collide with atom. अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, what you think? Does this electron will move easily? No, electron will not move easily. देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर के जो भी डॉट्स है वो सब इलेक्ट्रॉन्स है. ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलिजन होगा कि नहीं? किसके साथ? ये ब्लू कलर के डॉट के साथ, दैट इज एटम के साथ. यस, देयर विल बी अ कोलिजन विद द एटम. Thus atom oppose the flow of electron. Now what will happen? Some electron will hit this atom and it will come back. Again it will go, again it will hit. Okay, opposition होगा. When atoms are more, resistance is more. अगर मैं एटम यहाँ पे बहुत सारे एटम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एटम यहाँ पे ये वायर में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो होगा क्या? नहीं होगा. ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मूविंग अ कार, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, ओके, और एक रोड है, नैरो रोड है, और वहां पे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो नैरो रोड पे कार ड्राइव करना और वहां पे बहुत सारे ट्रैफिक है, सो इज इट इजी टू ड्राइव द कार फॉर यू? नो. एक तो रोड भी नैरो है और ऊपर से कार ड्राइव कर रहे हैं आप वहां पर, सो इट विल बी नॉट इजी फॉर यू टू ड्राइव द कार. बट अगर मैं आपको बोलूं कि हाईवे पे आप गाड़ी चलाइए, यू ड्राइव द कार ऑन हाईवे, ओके, वेयर देयर इज लेस ट्रैफिक, तो यू कैन रन द कार वेरी फास्ट, राइट? सो अगर स्पेस कम है तो इलेक्ट्रॉन का मूव, अगर एटम स्पेस कम है यहाँ पे, एटम अगर बहुत ज्यादा भर देता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करने के लिए स्पेस कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल ओपोज, देयर इज ऑलवेज कोलिजन विद द एटम. सो व्हेन एटम्स आर मोर, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो मोर. तो रेजिस्ट ज्यादा हो जाएगा, ओपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसे ही बोलते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड करता है और फिर से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, कितनी बार कोलिजन होता है? बहुत बार कोलिजन होता है एटम के साथ, तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है. उसे हम लोग साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं रेजिस्टेंस. ओके, सो व्हेन मोर एटम्स, मोर रेजिस्टेंस, एंड व्हेन मोर रेजिस्टेंस इज देयर, द करंट विल बी लेस. क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट भी कम होगा. सो व्हेन एटम्स आर लेस, रेजिस्टेंस इज लेस. जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप हाईवे पे
driving the car. If you're driving the car on the highway, then it will be less traffic, and less traffic, that means you can drive the car very fast, smoothly fast. Okay, so similarly, if the atoms are less, electrons can move very fast without opposition, and if the atoms move very fast, there is less opposition. मतलब less opposition मतलब कम ऑब्स्टिकल है, और कम ऑब्स्टिकल मतलब कम रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा. So current will be more. So the property of the conductor, if you write the definition properly in the examination, what it will be there? The property of the conductor due to which it opposes the flow of current is called resistance. ठीक है, ये definition आप याद रख सकते हैं resistance का. So what is the definition of resistance? The property of the conductor due to which it oppose मतलब रुकावट, obstacle, oppose the flow of current, जो current को रोकता है, is called as the resistance. Resistance बहुत important term है. Why? Because in every electronic gadget there is a resistance. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सही से काम नहीं करते हैं. वेदर इट इज योर रेफ्रिजरेटर, टीवी, आयरन, हीटर, ओवन, any electrical appliances, most of the electrical appliances resistance consist. Okay, because it control the flow of current. Okay, so you can note down this definition of resistance. So I hope it is clear about the resistance. Resistance was first time was told by George Simon Ohm. Okay, therefore we use its unit as a ohm. तो इसके लिए आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है तो उसका आंसर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. करेक्ट. So I hope it is clear with the resistance. So SI unit of resistance is ohm. Remember this symbol and remember this formula, that is R is equal to V upon I. अभी जो अभी हम लोग ने देखा था, जहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट, एंड टाइम इज मेजर इन द I is measure in the ampere, right? So if I put multiply by 1, you get in this way. तो जो कि अभी आपको मैंने बताया था टेक्स्ट बुक में, वो आपका बन गया है 1 ओम का definition. Either you can write this definition or either you can write the definition which is given in the textbook. It is one of the same thing. Okay, so I hope it is clear with the resistance as well as with the 1 ohm. तो सबके definitions आपको याद रखने हैं, सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ओम्स लॉ आपको याद रखना है, V is equal to IR. ओके, एंड सबके स्टैंडर्ड यूनिट आपको याद रखना है. करेक्ट. ओके, now next topic that we are going to study today after the resistance is resistivity. ये वर्ड बहुत सिमिलर है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट एक डिफरेंट है. ओके, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में देखिए क्या डिफरेंट है कि हर मटेरियल, इफ आई टेक सिल्वर, इफ आई टेक कॉपर, इफ आई टेक एल्यूमिनियम, सबका एक रेजिस्टिविटी होता है जो कि फिक्स्ड है. ठीक है, अभी आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, उसका आंसर है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. सबका फिक्स रेजिस्टिविटी है, कॉपर का, निक्रोम वायर या डायमंड. ठीक है, आप वो रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते, जबकि रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं. ये देखिए बेसिक डिफरेंस आप याद रखिए. खाली यहाँ तो मैं आपको एक सिंपल डेरिवेशन बताने वाला हूँ, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में. रेजिस्टेंस यू कैन चेंज, you can increase the resistance, you can decrease the resistance, but resistivity आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप याद रखिए. you cannot change the resistivity. resistivity फिक्स है हर एक वायर का, हर एक कंडक्टर का. now let us understand the derivation, a small expression for resistivity of material. Resistance of a conductor depends upon the length and the area of the cross section. देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन किस तरह से होगा आपका डेरिवेशन शुरुआत. R इज डायरेक्टली, ये अल्फा जो है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. याद है आपको? यस. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. करेक्ट. यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ये देखिए ये डेफिनेशन, ये देखिए रेजिस्टिविटी ये है, this is a resistivity and I am talking about this derivation, this one, this derivation that start from here. Okay, and end here.
स्मॉल डेरिवेशन है, स्मॉल छोटा सा एक्सप्रेशन है, ये आपको डिराइव करना है। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कॉपर का, ठीक है, रेजिस्टिविटी फिक्स है, निक्रोम का, डायमंड का, ये सब का रेजिस्टिविटी फिक्स है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एनीवे यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, बट इट इज गिवन टू यू, यू शुड नो दैट द मटेरियल, जो भी है मटेरियल, सबका रेजिस्टिविटी फिक्स होता है। नाउ सी हियर what they have told. First equation will be what R is directly proportional to L. What is R? R is means resistance, and what is L means length of the wire. R is directly proportional to N, मतलब resistance is directly proportional to the length of the wire. देखिए उसको मैं किस तरह से आपको बता सकता हूँ, एग्जाम्पल कंसिडर करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू अ पिकनिक, ओके, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द एडवेंचर ट्रिप, कोई एडवेंचर ट्रिप के लिए अगर आप जाते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्ट नहीं समझेगा आपको, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, मतलब जितना वायर का लेंथ ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो उसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं. तो सपोज आप पिकनिक जा रहे हो एडवेंचर ट्रिप के लिए, और आपको एक सुरंग से जाना है फॉर एग्जाम्पल, ओके. और किस तरह से आपको जाना है, लाइक यू हैव टू ग्लाइड एंड यू हैव टू गो, ठीक है, रेंगते हुए आपको जाना है वो स्लाइड से, आप चल नहीं सकते उसमें, वो सुरंग इतना नैरो है, ठीक है. तो आप सपोज वो सुरंग जो है, इट मे बी सपोज 2 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है. तो 2 किलोमीटर तक आपको ऐसे ग्लाइड करते करते जाना है, रेंगते हुए जाना है. तो 2 किलोमीटर तक आपको ऐसे ही जाना है. सो इज इट इजी फॉर यू टू गो टिल 2 किलोमीटर बाय जस्ट बाय ग्लाइडिंग देयर? नहीं. अगर 2 किलोमीटर भागना रहता है तो ठीक है फिर भी, लेकिन 2 किलोमीटर रेंगते हुए आपको जाना है, आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है. तो वो आपके लिए बहुत तकलीफ हो सकता है. तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन, ऑब्स्टेकल्स, उतनी आपको तकलीफ हो रही है, राइट. तो वायर का लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है. करेक्ट, आपको समझ में आ गया ये बात? ओके. सेकेंड इज वॉट, R is inversely proportional to 1 upon A. Now you have to remember this one. R is inversely proportional to 1 upon A का मतलब कि ये inversely proportional है. क्यों inversely proportional? अगर ऐसा होता R is directly proportional to A, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है ना 1 upon A. तो जब कुछ ऐसा लिखा रहता है 1 upon something, that means it becomes inversely proportional. Inversely proportional means what? If area increases, resistance decreases, and if area decreases, resistance increases. इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि सपोज if you want to go, if I take the same example again of the picnic, okay, now suppose if you have to go to this, वैसे वो सुरंग से आपको जाना है, ठीक है, लेकिन उसका एरिया बड़ा है, मतलब वो अब नैरो नहीं है, एरिया बड़ा है, और आपको 2 किलोमीटर चल के जाना है, तो आपके लिए ठीक होगा, उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. करेक्ट. लेकिन अगर उसका एरिया अगर कम हो जाता है तो फिर से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट. तो ज़्यादा एरिया, इफ मोर एरिया इज देयर, रेजिस्टेंस इज लेस, एंड इफ लेस एरिया इज देयर, रेजिस्टेंस इज मोर. ओके. सपोज एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. इफ यू आर राइडिंग अ बाइक, अगर नैरो रोड है तो वहाँ पे बाइक चलाने के लिए तकलीफ होती है नैरो रोड पे, लेकिन अगर हाईवे है तो आप इजीली चला सकते. देखिए एक और एग्जांपल, जैसे नैरो रोड है, ठीक है, नैरो रोड है, वहाँ पे अगर आप बाइक चलाते हो, सो दैट विल बी डिफिकल्टी फॉर यू, ओके. बट इफ यू राइड द बाइक ऑन द हाईवे, इट विल बी ईजी फॉर यू. तो नैरो रोड पे एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और हाईवे पे एरिया बहुत ज़्यादा है रोड का, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे कम है. सो ठीक है. तो if area increase, resistance decrease, and if area decrease, resistance increase. So if I compare both the equations, so I'll write R is directly proportional to L. Instead of 1 I'll write L upon A. So ये proportionality sign है, उसको हटाना है तो equal to sign आ जाएगा, right. And after that I'll put a constant term, as you know. Now constant term is here is nothing but rho. Okay, this is you can consider as a P also. यहाँ पे कुछ लोगों को ये P लगेगा, ठीक है. This is a Greek letter which is called as rho.
So rho is a constant of proportionality and it is called as the resistivity of the material. So the unit of resistance is what? Resistivity is ohm meter. तो यूनिट क्या आ गया resistivity का? ओम मीटर. बस यही डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है. ये डेरिवेशन है, ठीक है. इसे ही बोलते हैं, ये जो टर्म है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी. और यहाँ से मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ. दिस इज मराठी का 9 भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है. इट्स अ ग्रीक लेटर, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है. और इस ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखते हैं. यू कैन राइट इन दैट वे ऑल्सो. ये जो है ये रो इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो इट बिकम्स आर ए अपॉन एल. तो ये डेरिवेशन हो गया आपका कंप्लीट रेजिस्टिविटी का. रो इज इक्वल टू, दिस इज रो, आर इज रेजिस्टेंस, ए इज एरिया एंड एल इज अ लेंथ. सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ओके. एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर. करेक्ट. सो रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव द डिफरेंट रेजिस्टिविटी. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू प्रूव दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. किस तरह से प्रूव करेंगे कि रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है? बहुत ईजी है, प्रूव कर सकता हूँ मैं यहाँ पर. देखिए मैं प्रूव करता हूँ. ये देखिए डेरिवेशन डिराइव किया, तो ये इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ. रेजिस्टिविटी I'll write here. रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए अपॉन एल बराबर. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट. आर ए अपॉन एल डिनोमिनेटर. तो आर का यूनिट क्या होता है? ओम, करेक्ट. ओम का सिंबल यही है. और यू कैन राइट स्वेलिंग ऑल्सो. एरिया इज मेजर इन मीटर स्क्वायर एंड लेंथ मीटर में मेजर होता है. तो 2 मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपका? रो इज इक्वल टू ओम मीटर. तो प्रूव हो गया कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर. करेक्ट. सो आई हैव प्रूव दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. सो यू शुड नो ऑल्सो. यू कैन, ये आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है. ये ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है कि हाउ विल यू प्रूव दैट द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, आई होप इट इज़ क्लियर विद द ओम्स लॉ. लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ देखा था, अब ये लेक्चर में हम लोग ने रेजिस्टेंस देख लिया एज वेल एज रेजिस्टिविटी देख लिया, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट है. अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट आर द कनेक्शन आर देयर. फर्स्ट इज द सेल. यू कैन सी ये सेल है, ओके. सेल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट है एम मीटर, ठीक है. इसे एम मीटर बोलते हैं. एम मीटर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट, ओके. एंड देन एम मीटर के साथ ये देखिए ये जो ऐसा लाइन है, जिगजैग लाइन, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है. ये सिंबल है रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस के ऊपर क्या लगा है? वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. और फिर ये वायर फिर से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है. नाउ हाउ डज द करंट फ्लो? करंट फ्लो फ्रॉम एम मीटर, ओके. करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी, सॉरी, सेल से करंट फ्लो होता है, ठीक है. यहाँ पे करंट जा रहा है और ये पूरा करंट यहाँ से फ्लो होके फिर वापस कंटिन्यू, यहाँ पे भी करंट फ्लो होता है, राइट, रेजिस्टेंस में. तो ये सब सर्किट के नाम, सर्किट में ये सब कनेक्शन होता है तब जाके एक सर्किट बनता है. तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. एम मीटर क्या है? measuring the current. Voltmeter measuring the potential difference. This is a symbol of resistance, this is a symbol of electric cell. So total combination becomes an electric circuit. तो यहाँ पे देखिए ये फिगर में, अगर फर्स्ट फिगर में अगर आप देखेंगे, इन फर्स्ट फिगर सेल के साथ बल्ब कनेक्ट है एंड बल्ब किससे कनेक्ट है? एक की के साथ जो मेटेलिक की होता है, राइट. तो अगर आप देखेंगे बल्ब जलने लगा है, क्यों? क्योंकि बल्ब में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए मैंने एक चाबी लगा दी है यहाँ पे. देखिए आप देख सकते हैं ये चाबी है, ठीक है, मेटल का बना हुआ. तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यस हो रहा है. किस तरह से पता चला? क्योंकि ये बल्ब जल रहा है. तो जो चाबी है वो मेटल की बनी रहती है, चाबी आप लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, करेक्ट. अगर सेकेंड चीज़ में आप देखिए डायरेक्ट वायर को लगा दीजिए बैटरी के साथ बल्ब को, तो भी बल्ब ग्लो करेगा. ये केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दो अलग अलग मटेरियल का वायर लगाया हुआ है, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर नहीं किया है, इसके लिए बल्ब के साथ तो वायर ग्लो नहीं कर रहा है. यहाँ पे आप देखेंगे एक रबर का टुकड़ा लगा दिया है. सो रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रबर इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं करता, तो इसके लिए
यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर देखिए ये कनेक्शन रॉन्ग है, देखिए हाँ यहाँ पे क्या, पिक आउट द मिस्टेक इन द फिगर अबव, यहाँ पे मिस्टेक पूछा है ना, राइट। तो जनरली रबर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, तो ये मिस्टेक है कि यहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए था, ठीक है। ये वहाँ पे बल्ब जल रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए था, रबर पास नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। और यहाँ पे ये वाले फिगर में आप देखेंगे, ये वाले फिगर में, इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो कनेक्शन प्रॉपर है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं चल रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक। ओके, तो ये दो फिगर में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए था और यहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए था, ये मिस्टेक पॉइंट आउट की है। सेकेंड, वाई आर द बल्ब इन द फिगर बी सी डी बिलो नॉट लाइटिंग अप। अब यहाँ पे देखो, फिगर ए में बल्ब ग्लो कर रहा है, नो इशू। फिगर बी में बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है बिकॉज द वायर हैज़ बिन ब्रोकन। फिगर सी में भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है बिकॉज यहाँ पे देखिए वायर का कनेक्शन टूट गया है यहाँ से। फिगर डी में आप देखिए एक ही कनेक्शन से दो वायर लगा दिए यहाँ पर, ओके, और यहाँ पे कनेक्शन नहीं लगा है, इसके लिए बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। और फिगर ई में बल्ब ग्लो करेगा, भले आपने क्रॉस करके वायर लगाया है, फिर भी बल्ब ग्लो करने वाला है, राइट। सो बी सी डी में यही कनेक्शन है, कनेक्शन रॉन्ग है या कनेक्शन टूटा हुआ है, इसके लिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज द मिस्टेक्स, करेक्ट। ओके, नाउ विल सी दिस टेबल। ये देखिए ये टेबल जो आपको पूरा दिया है, ठीक है, ये टेबल हम लोग देख लेंगे। दिस आर द सिंबल्स एंड द फंक्शनल्स, हाउ दे फंक्शन बेसिकली। ओके, okay, so we'll see first thing, one is a cell. You know this is considered to be the cell. This is a symbol of cell or actual cell we see in this way. This is the actual cell which is very difficult to draw, therefore we draw the symbol. This is a battery, तो बैटरी का सिंबल इस तरह से होगा। ओके, more than one cell is considered to be the battery. नेक्स्ट इज द की स्विचेस। अगर हम लोग देखेंगे तो डिवाइस यूज टू स्विच द सर्किट और स्विच ऑफ द सर्किट। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्विचेस होते हैं जो चालू बंद करने के लिए काम करते हैं। ओके, वन इज़ अ प्लग की। प्लग की शोन इन विद द डॉट एट द सेंटर। अगर आप देखेंगे कि अगर डॉट है बीच में प्लग की के, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डॉट है, तो दैट मीन्स द की इज क्लोज्ड एंड द करंट विल पास। okay, when the pin is inserted it is on, that is closed actually. Okay, in this way actually it look like, ठीक है। so plug key is used in a lab, generally it is used in a lab, and here you can see when pin is removed it is off, that is open. अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होगा। जैसे आपके मोबाइल बैटरी, मोबाइल होता है, चार्जर होता है, ठीक है, जब आप चार्जर लगाते हैं देन इट विल चार्ज, अदरवाइज व्हेन इट विल रिमूव इट विल नॉट चार्ज. We use a plug key to charge in a mobile in our day-to-day life. This plug key is also called as a tap key. Tap key आपने सुना होगा, when the two dots are in contact with the tap key. tap key का ये सिंबल है, ये भी आप याद रखिए, tap key का सिंबल है, ठीक है। ऑन और ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिक बेल जो होता है आपकी डोर बेल, ओके, उसको आप टैप करते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल बजता है। स्विच इज एग्जाम्पल ऑफ टैप की, ओके। नेक्स्ट इज अ रेजिस्टेंस। ये सिंबल एक्चुअल सिंबल का, रेजिस्टेंस का सिंबल यही है। एक्चुअल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी ड्रॉ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस वे, ओके, जिगजैग लाइन। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से है कि जिगजैग लाइन और एक क्रॉस है बीच में, ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, ऐसा रेजिस्टेंस जिसको आप चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल था। ये दूसरा एक सिंबल है जो कि ठीक है, अगर आपको नहीं है फिलहाल, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं। you remember only two symbol, resistance and variable resistance, okay. सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ये रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, चाहे आपके वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, रेगुलेटर फैन के हो, ठीक है। सो इन एवरी गैजेट देर इज अ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। रेगुलेटर है फैन का, ठीक है, उसमें भी रेजिस्टेंस होते हैं। ये सिंबल है एमीटर का, दिस इज अ सिंबल ऑफ एमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सिंबल एमीटर कुछ इस तरह से दिखता है। सिंबल एमीटर का ये है सर्कल ए एंड प्लस और माइनस साइन। एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट इन एम्पियर। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर लुक लाइक इन दिस वे, okay, and this is a symbol of voltmeter. Voltmeter is used to measure the
potential difference in volt. And this is a galvanometer. Okay, just observe this. Galvanometer is also used to measure the electric current, लेकिन galvanometer में करंट भी बताता है और प्लस डायरेक्शन भी बताता है, दोनों चीज़. ठीक है, तो ये galvanometer हो गया आपका. So यही सब आपको पता होना चाहिए, right? Next, wire joint. This is how the wire joint symbol is there. Actual wire joint इस तरह से दिखता है, right? But to draw the symbol of wire joint, you can draw in this way. This is the symbol of wire crossing. आपने देखा होगा इस तरह से wire crossing होता है actual में, but the symbol you can draw in this way, wire crossing का. Two wire crossing each other, but not joint. Correct? This is a symbol of bulb. This is actual bulb, but this is a symbol of electric bulb. You can remember this. Correct? Same thing is given here also. You can refer this table. This is important. This can come in examination. ठीक है, सिंबल्स ड्रॉ करके आ सकते हैं आपको, और आपको पहचानना है उसका फंक्शंस क्या है या उसका नाम पहचानना है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो, राइट. आई होप इट इज क्लियर विद द सिंबल्स एंड एवरीथिंग. नाउ नेक्स्ट एंड for today's lecture we'll continue last topic, that is conductor and insulator. Now what is conductor and what is insulator? Okay, that we'll see. Okay, basically the substance are divided into three types. One is conductor, one is insulator, और एक और है सेमी कंडक्टर. ओके, अगर अभी फिलहाल अभी आपको सेमी कंडक्टर नहीं है, जस्ट यू कैन गेट अ इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, एक तीन चीज़ होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर. ओके, so what is conductor? Conductors have a large number of free electrons and hence electric current can flow through it. Conductors जैसे बहुत सारे जो metallic wires होते हैं, okay, in that there are the large number of electrons are present, so free electrons can pass very easily, and because of that the electric current is flowing in that. Example, copper, silver, iron, etc. इंसुलेटर क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. ओके, insulator have less or practically no free electrons, hence they do not conduct electricity, therefore there is no electricity in that. Example, glass, rubber, wood. आप देख सकते हैं, ये वायर आपने देखा होगा कभी, राइट. सो अगर आप वायर को कट करते हैं तो अंदर से एक और वायर निकलता है, राइट. ऊपर का जो कोटिंग होता है, ओके, दैट इज अ इंसुलेटर. ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो एक्चुअल वायर है, दैट इज एन मेटेलिक वायर, कॉपर वायर, एक्चुअल मेटल वायर, ओके, विच इज act as a conductor. You can see this is a metal wire is a conductor. The rubber coating is called as an insulator. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो स्विचेस होते हैं, you have seen the switches at your home. The plug cover is made up of the insulator. जो प्लग का जो कवर होता है वो इंसुलेटर से बना होता है ताकि शॉक ना लगे. And the pins are made up of the conductor. ये जो पिंस आप देखेंगे they are made up of the conductors. और सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी मीन्स आधा, हाफ, राइट. So they behave like conductor and they behave like an insulator. I mean to say कि sometime the current will pass through it, sometime the current will not pass through it. Okay, they do not have a free electrons at room temperature but can develop the free electron under a specific condition. ये बहुत important है. Specific condition means what? When heated, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर का. आगे आपको नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है इसके बारे में भी. जैसे सिम कार्ड में आपको येलो कलर का जो चिप लगा रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो द सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ द सेमी कंडक्टर बेसिकली. और आपके जो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, ओके, उसमें एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जिसे आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, वो भी आपका इससे ही बना होता है, सेमी कंडक्टर मटीरियल से. तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर. Okay, so is it clear with the conductor and insulator? Conductor means there are a large number of free electrons are there, so electricity can pass very easily, while in the insulator free electrons are practically not there, so current will be very much less or practically no current will be there. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने होंगे. ठीक है, so I hope it is clear with this all things. Today what we have seen, started with the resistance, resistivity of material, and then we have seen electric circuit, okay, and then we have seen the table of different components and the symbols, functions, and
Today we have seen also the conductor, insulator and semiconductor. Okay students, I hope it is clear. Go once again with this lecture, okay, revise it and just go through the textbook also. Thank you so much.